So myself, Umme Hani. Am I audible to all guys? Yes, ma'am. Okay. So yes guys, as our today's session is based on generative AI, जैसे कि आप लोगों को पता है कि generative AI आजकल बहुत ज़्यादा हाइप पर चल रहा है, राइट? और हर जगह पर अगर हम चैट जीपीटी के बारे में सुने, अगर हम AI मॉडल्स के बारे में सुने, AI एजेंट्स के बारे में सुने, तो हर जगह पर चैट जीपीटी, जेमिनी या जनरेटिव AI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, करेक्ट? तो गाइज एक्चुअली में द सिनेरियो इज कि अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में जाकर देखें तो ये चीज कोई न्यू नहीं है, राइट? ये चीज बहुत पहले से है और ये हमारे सराउंडिंग में बहुत पहले से आ चुकी है, बट अभी बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस ओवरव्यू करने की वजह से या बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हाइक में चलने की वजह से हमारा ये जो जनरेटिव एआई है ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? So basically I will start from very scratch because I'm considering that everyone is looking for a scratch opportunity in generative AI, right? So we'll start from very scratch. The very first thing, as कोई भी डोमेन के लिए डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय डेटा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, गाइस? Yes guys, what is data? Collection of multiple records. Collection of multiple records. Okay, anyone else? Anyone? Ma'am, collection of many information. Collection of many information. Okay, anyone else? Yes, Khushbu? Yes, Hassan, Khushbu, Devendra. Ma'am, facts or information that involves in a study. Okay. Firstly, I'll ask you some questions regarding this. Okay. Then just let me know that you are aware with these things or not. मुझे बताओ कि हम चैट जीपीटी क्यों यूज करते हैं, and what is the use of chat gpt? Yes guys, what is the use of chat gpt? हम सब यूज कर रहे हैं आजकल. For suggestions. For suggestions. We only use chat gpt for suggestions, Vivek? No, ma'am. Like हम लोग complex issues resolve करने के लिए and like कुछ development करना है और हमें कम time में करना है, that's why we use ChatGPT for helping us. Okay. Also, I'll give you one more thing. अगर हमारे पास ChatGPT already available है, then why ChatGPT is upgrading in versions? Like पहले हमारे पास सिर्फ ChatGPT था, right? Then हमारे पास ChatGPT 1 आया, ChatGPT 2 आया, then we have now ChatGPT 5. After that, we have something known as Gemini. Then in Gemini, we have something known as Nano Banana and many things, right? So why it is, or why we wanted to upgrade with new AI agents? Ma'am, to solve problems quickly. To solve problem quickly. Okay. Anything else? To improve accuracy and intelligence. To improve accuracy and intelligence. Okay, nice. Next answer. Yes guys, I want answers from everyone, so please coordinate. For one question, like give multiple suggestions. For giving multiple suggestions. Okay. Guys, in today's world, if you will see a small scale company or if you will see a large scale company, everyone is using AI agents, right? Even though they have the better persons, they have the better faculties, but although they have an AI agent, right? उनके पास, हर किसी के पास एक AI का सर्वर है जिसके बेसिस पर वो क्या कर रहे हैं, चीजों को यूज आउट कर रहे हैं, करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन इज कि ह्यूमंस जो है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, राइट? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आजकल जितने भी अल्गोरिदम्स बन रहे हैं वो ऑलरेडी चैट जीपीटी बनाकर दे रहा है, राइट? और मशीन लर्निंग के डेवलपर का काम था कि सिर्फ अल्गोरिदम्स को क्रिएट करना या अल्गोरिदम्स के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल करना, है ना? बट वो इजीली चैट जीपीटी हमको करके दे रहा है. तो क्या चैट जीपीटी विल रिप्लेस ह्यूमंस? व्हाट डू यू थिंक? इज इट? Yes, No, ma'am. ma'am, not possible. Can you give the Not reasons possible. why it is not possible? Because ma'am, वो हमें
100% कोड राइट नहीं देता मैम, उसमें हमारा थोड़ा उसको वो करना पड़ता है मैम, मैच क्या करना करना पड़ता है, पड़ता मतलब है? उसमें लॉजिक हमारा थोड़ा तो लॉजिक मतलब ऐड करना पड़ता है ओके, एनीथिंग एल्स? कोड को मैनेज करने के लिए। एनीथिंग एल्स? मैम आपने जो एक एप्लीकेशन बताया था एआई का, इट्स नैनो बनाना, so यस। it create ads for websites and all, so I हम्म guess that can replace human efforts, means मैंने देखा था जैसे मेरी हम्म फ्रेंड शी works in movie making and all, so हम्म now she uses AI as an nano banana AI for making ads, so मुझे ओके, लगता है कहीं ना कहीं जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं एआई के जॉब्स अंदर। रिप्लेस हो रहे हैं। ओके, Yes. ठीक है, तो आपका ये सजेशन है कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, राइट? Yeah. ओके, यस, एनीवन एल्स? एनीवन? Ma'am, I don't think so. AI can replace human beings as humans have emotions and sympathy as well as their own creativity and original mindset, which cannot be replaced by an AI. करेक्ट। एक्चुअली में द थिंग इज गाइस कि जो सिचुएशंस चल रही है, राइट, कि आजकल चैट जीपीटी आपके छोटे से छोटे काम को या बड़े से बड़े काम को बहुत ही प्रिडोमिनेंटली, या एआई के जितने भी एजेंट्स हैं वो बहुत ही क्विकली परफॉर्म करके दे रहे हैं, इसीलिए हमारा जो ट्रस्ट है वो हमारे पर से कम हो रहा है और एआई एजेंट्स पर से ज्यादा बढ़ रहा है ना? सो द सिचुएशन इज कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई एजेंट आपको रिप्लेस कर देगा। ऑब्वियसली जो जॉब रोल्स हैं वो थोड़े कम होंगे, हाँ उनका जो विजुअलाइजेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जो सिनेरियो है वो और डेवलप्ड हो रहा है ना? देखो, अगर हम टोटली 100% कोई एआई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो द थिंग विल बी ऑल इन रोबोटिक्स, राइट? एंड जो मैनुअल काम है वो पूरा बंद हो जाएगा, है ना? बट हम क्या 100% रोबोट्स पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम 100% रोबोट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज एक सर्टेन लिमिट पर या एक सर्टेन ड्यूरेशन पर वो कभी ना कभी गलत प्रूफ हो ही सकता है। बिकॉज जैसे कि खुशबू ने मेंशन किया, इट डज नॉट हैव इमोशंस, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न as human, right? Even though it is storing the data more as compared to human, but it don't have something which has in humans. Okay, so the situation is कि अगर आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई एजेंट को अपने काम से रिलेटेड यूज करने आता है, या आप जानते हो कि उसका यूज लेकर कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और आज का जो हमारा सेशन है कि हमको कैसे इन ट्रिक्स को या इन टिप्स को गेन करना है जिसके बेसिस पर हम उसको और अच्छे से स्टडी कर पाए, राइट? देखो, कोई भी स्किल्स को स्टडी करना या कोई भी स्किल्स के बारे में जानना तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं उतर जाते हो। आजकल हम सारे सिनेरियोस को बहुत ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, हमारा ये माइंडसेट है कि हाँ भाई ये हो सकता है, और हम किसी रोबो को हमारे से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? तो आज का जो एक्चुअली मेन टॉपिक है दैट विल बी हैंड्स ऑन जनरेटिव एआई, बिकॉज आपको पता चले कि कैसे हम हमारे डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं, कैसे हम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को वहां पर यूज करते हैं जिसके बेसिस पर हम जनरेटिव एआई बनाते हैं। समझ में आया? जैसे कि आप लोग अभी डे टू डे लाइफ में सुन ही रहे होंगे कि वी हैव AWS एंड क्लाउड ऑल्सो, राइट? जिसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को डिप्लॉय कर रहे हैं, या हमारा जो भी मॉडल बन के रेडी है हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, है ना? जिसके लिए हमको आगे के प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। सो तुम्हारा जो जनरेटिव एआई है वो डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है, बट हमको जनरेटिव एआई को स्क्रैच से स्टडी करना है। वी वांटेड टू नो कि हमको कैसे बनाना है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होंगे, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बनेंगे, ANN कहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, CNN कहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, RNN क्यों वर्क करेगा, और ये सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैं आपको एक सर्कुलर इमोशन या एक सर्कुलर पैराडिग्म में बताऊंगी कि कहाँ पर एआई आपका रिलेट करता है, कहाँ पर आपका डीप लर्निंग रिलेट करता है, कहाँ पर आपका मशीन लर्निंग रिलेट करता है, तो वी हैव मेनी ऑप्शंस रिलेटेड टू दैट। फाइन गाइस, do you feel any difficulty in any of the sentences? No, ma'am. Okay, so my screen is visible to everyone, right? Yes guys, Not yet, ma'am. my screen is not visible. Okay, just let me know. Now it is visible. Yes. Okay, so guys, as I've already told you
that we have to see the things from the start of the thing. यहाँ पर सबको एक triangle दिख रहा है? Yes guys, Yes, ma'am. सबको triangle Yes, ma'am. दिख रहा है, right? अब यहाँ पर at the very initial step मैंने कुछ numbers mention किए हैं and this is my step 1. Okay guys, this is my step 1. Can you tell me कि आप इस step 1 पर इसको क्या बोल सकते हो? What is this? Step 1 पे अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इसको कैसे recognize करोगे? With the number written on it. Correct? It's a basic number या it's a raw and fact number, right? अगर इस स्टेज पर या इस स्टेप 1 पर मैं इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करूं, क्या परफॉर्म करूं? एनालिसिस परफॉर्म करूं, तो ये जो नंबर्स हैं, एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्टडी, अ रिसर्च, राइट? तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर एनालिसिस या स्टडी परफॉर्म किया तो ये जो नंबर्स है गाइस, ये डेट में कन्वर्ट हो गए। समझ में आया? सो बेसिकली जो आपका स्टेप 1 था दैट वाज योर नंबर्स, एंड जो आपका स्टेप 2 अभी जस्ट आपने क्रिएट किया वो आपका नंबर डेट में कन्वर्ट हो गया, राइट? जब आप इसके ऊपर और चीजों को विजुअलाइज करते हो या इसके ऊपर और इंफॉर्मेशन गेन करते हो तो आपको क्या पता चलता है? पता है कि ये जो नंबर्स या ये जो डेट आपको स्टेप 2 पर मिला है ये एक्चुअली में किसी का डेट ऑफ बर्थ है। समझ में आया? इतना क्लियर है? स्टेप 3 पर जब आप इसको और इसके बेसिस पर और इंफॉर्मेशन गेन करोगे या इसके बेसिस पर और नॉलेज गेन करोगे तो यू विल लेट नो दैट ये जो है या तो ये किसी ग्रेट लीडर का डेट ऑफ बर्थ है, या तो ये किसी डेटा साइंटिस्ट का, या तो ये कोई ग्रेट रिसर्चर का डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आपका विजडम क्या बोलता है? व्हेन यू गेट टू नो दैट ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो यू विल विश, राइट? यू विल विश और यू विल सेलिब्रेट और यू विल फॉरवर्ड द थिंग्स एज कंपेयर टू द फ्यूचर थिंग्स और एज कंपेयर टू द प्रीवियस थिंग्स, राइट? सो एक्चुअली में गाइस जो सबसे कोर पार्ट है वो स्टार्ट होता है आपके डेटा से, करेक्ट? आपका डेटा ही है जो आपके स्टेप 1 में भी प्रेजेंट है, आपका डेटा ही है जो आपके स्टेप 2 में भी प्रेजेंट है, आपका डेटा ही है जो आपके स्टेप 3 में भी प्रेजेंट है, और वो आपका डेटा ही है जो आपके फाइनल स्टेप में प्रेजेंट है। तो आप आपके डेटा के डेफिनेशन को ये नहीं बोल सकते कि एनी इंफॉर्मेशन और एनी रॉ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? बिकॉज आपका इंफॉर्मेशन स्टेप 1 में भी हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन स्टेप 2 में भी हो सकता है, स्टेप 3 में भी हो सकता है और स्टेप 4 में भी हो सकता है। सबसे पहले मेरा बहुत ही एकदम ऐसे कोर पार्ट होता है कि मेरे पास एकदम रॉ डेटा है ना? वो रॉ डेटा से मैं कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, वो रॉ डेटा से मैं आगे कितने फ्लक्चुएशंस परफॉर्म कर सकती हूँ, या वो रॉ डेटा से मैं आगे कितनी नॉलेज गेन कर सकती हूँ। तो आपके डेफिनेशन में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एनी इंफॉर्मेशन विच इज रॉ और एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी ऑफ द नॉलेज। इट इज दैट एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिकॉर्डेड, which can be stored, which can be saved. Okay, आपका डेटा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आया? और अगर आपको जनरेटिव एआई का फील्ड हो, अगर वो आपका एआई का फील्ड हो, अगर वो आपका डेटा साइंस का फील्ड हो, अगर वो आपका डेटा एनालिस्ट का फील्ड हो, आपको इन 3Ds को स्टडी करना बहुत जरूरी है, which is very first is your data, second will be your database and third will be your database management system. Okay guys, इतना clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now guys, for understanding these 3 terms, I will give you one more example. Okay? Just let me know you are okay with this or not. Okay, no problem. I'll give you only. Okay. Just imagine this is your login page. Okay? This is your login page. अब आप सब इंस्टाग्राम यूज करते हो, राइट? हम सभी यूज करते हैं यूजुअली। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप लॉगिन पेज पर जाते हो या जब आप लॉगिन करते हो कोई चीज को, या इंस्टाग्राम का जब आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सबसे पहले वो आपका नाम पूछता है, करेक्ट? देन वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है, करेक्ट? देन वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस या जीमेल एड्रेस पूछेगा, उसके बाद वो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, एंड देन वो जो भी आपका
आगे का इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो आपको लॉग इन करके देगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी रजिस्ट्रेशन पेजेस होते हैं या जितने भी लॉगिन पेजेस होते हैं वो मुझसे मेरा डेटा ले रहे हैं? इट इज Yes. राइट। एक्चुअली में वो मुझसे क्या ले रहे हैं? मेरा डेटा ले रहे हैं, है ना। और मैं बहुत ही फ्रीली या मैं बिना कोई एडवांटेज के सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऐप को यूज करने के लिए मैं अपना डेटा उनको बाइफरगेट कर रही हूं, करेक्ट। इसीलिए Yes. जो अनवांटेड कॉल्स मुझे आते हैं यहाँ वहां से कि आर यू लुकिंग फॉर दिस, आर यू लुकिंग फॉर दिस कोर्स, आर यू लुकिंग फॉर दिस सिनेरियो, आर यू लुकिंग फॉर दिस एडमिशन, आर यू लुकिंग फॉर एमबीए, तो ये जितने भी कॉल्स आते हैं ये आपको ऐसे ही नहीं आते। आपने कहीं पर तो अपना डेटा रजिस्टर किया हुआ होता है जिसको वो लोग यूज करके आपको आगे तक पहुंचाते हैं। समझ में आया? अब मेरे को एक और बात बताओ, अगर मैंने उसको एक बार अपना डेटा दे दिया है तो वो मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, राइट या वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और वो जब भी चाहे वो क्या कर सकते हैं, मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन या मुझसे मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां से ले सकते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने मेरा डेटा जहां पर भी स्टोर किया है दैट इज नथिंग बट योर डेटाबेस। समझ में आया सबको? ठीक है। अभी एक और चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर गलत नाम डाल दिया है लॉगिन करने के टाइम पे, या गलत कॉन्टैक्ट डाल दिया है या गलत यूजर नेम डाल दिया है, तो क्या वो आपको एक्सेस देगा? यस गाइस? No. क्यों नहीं देगा? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि वो डेटा मैच नहीं करता है उस डेटा से जो उनके The डेटाबेस में data है। is not getting matched. The password is not getting matched. The username is not getting matched. Correct? तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है या एक बहुत ही मैनेजमेंट सिस्टम है जो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके डेटा और डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। जो क्या करता है? जो आपके डेटा और डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। तो वेदर इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द स्ट्रीम, इफ इट इज डेवलपमेंट, इफ इट इज एनालिस्ट, इफ इट इज डेटा साइंटिस्ट, इफ इट इज जनरेटिव एआई, हर जगह पर आपको ये तीन चीजें यूज होती हैं और ये यूज होना कंपल्शन है। आपका डेटा, आपका डेटाबेस और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप जनरेटिव एआई की थ्योरी को बहुत स्टार्ट से एनालाइज कर पा रहे हो तो यही हो रहा है कि आप उनको प्रीवियस डेटा दे रहे हो और वो आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पर वो आपको आगे की चीजों को रेक्टिफाई करके दे रहा है, आगे की चीजों को सॉल्व करके दे रहा है। Am I clear? Yes, ma'am. Any doubts till here? सबको समझ में आ रहा है पक्का? Yes, ma'am. ओके। नाउ गाइस, अभी हम उस मोटिव पर आते हैं जिस मोटिव के लिए हमने ये सेशन को रखा है। सो द वेरी फर्स्ट फील्ड और द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड विच वी नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एनी ऑफ द फील्ड, दैट इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट? और ये एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ज्यादा हाइक पर चल रहा है, बहुत ज्यादा हाइक पर चल रहा है ना। आपके जितने एआई एजेंट्स वगैरह है ये सारे भी इसी फील्ड के ऊपर आजकल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है ना आपके आईटी डोमेन में या आपके जनरेटिव एआई के डोमेन में, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। द फादर ऑफ एवरीथिंग, द फादर ऑफ मशीन लर्निंग, द फादर ऑफ डीप लर्निंग, द फादर ऑफ जनरेटिव एआई एंड एनी ऑफ द थिंग। क्लियर? आफ्टर दैट you have something known as machine learning, which is the subset of AI. Correct? Am I right, guys? Yes, ma'am. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो आपका एक और सबसेट है जो आपको यहाँ पर स्टडी करना है, दैट इज नथिंग बट योर मशीन लर्निंग। एंड देन यू हैव वन मोर सबसेट जिसको बोला जाता है डीप लर्निंग। करेक्ट गाइस? अब एक्चुअली में मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास हम सब लोगों ने आईफोन देखा है, करेक्ट? वी ऑल नो अबाउट आईफोन एंड वी ऑल्सो सीन समथिंग नोन एज एलेक्सा। करेक्ट? हमने एलेक्सा भी देखा है, हमने आईफोन भी देखा है, हमने बहुत सारे वॉइस असिस्टिव एजेंट्स भी देखे, है ना। तो अगर मैं आपको आईफोन का एक एग्जांपल दूं तो उसके अंदर एक फीचर होता है जिसको बोला जाता है सीरी। करेक्ट? हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट सीरी? Yes. Yes. क्या है ये सीरी गाइस? AI bot. AI Bot. बॉट है। ओके तो ये क्या करता है? ये एक्चुअली में सबसे पहले मेरे कमांड को एक्सेप्ट करेगा या सबसे पहले तो मेरे वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। करेक्ट? क्योंकि अगर मैंने उसको अपने वॉइस पर सेट किया है तो वो किसी और के वॉइस पर आंसर नहीं करेगा।
तो सबसे पहले वो मेरे वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, देन वो मेरे कमांड को एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट, एंड देन कमांड को एक्सेप्ट करने के बाद वो वहां पर उस कमांड को रिकॉग्नाइज करेगा, करेक्ट, एंड कमांड रिकॉग्नाइज करने के बाद वहां पर जो भी लैंग्वेज में मैंने उसको कमांड दिया है वो उसको प्रोसेस करेगा, करेक्ट। तो एक्चुअली में आप इसको ब्रेक करके समझने का ट्राई करो। सबसे पहले वो मेरे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है या वो मेरे वॉइस को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो आपने एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में सुना होगा जिसको बोला जाता है डीप लर्निंग, है ना। Deep learning is a very common subject which is used for voice recognition, which is used for image recognition, which is used for pattern recognition, है ना। तो आपका वॉइस रिकॉग्नाइज करने वाला पार्ट, आपका इमेज रिकॉग्नाइज करने वाला पार्ट, आपका कोई भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाला पार्ट जो होता है वो आपका डीप लर्निंग में होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सीरी में जो चैटबॉट है उसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है वॉइस को रिकॉग्नाइज करना कि वेदर द वॉइस इज रिलेटेबल टू द सेटअप वॉइस और नॉट। इतना क्लियर है सबको? आफ्टर दैट गाइस, अगर मैंने उसको कोई लैंग्वेज पर सेट किया है, दैट लेट्स सपोज कि मैंने उसको इंग्लिश पर सेट किया है या मैंने उसको फ्रेंच में सेट किया है या मैंने उसको जर्मनी में सेट किया है, तो वो वही लैंग्वेज के टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा, राइट, या वही लैंग्वेज के वॉइस को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैंने इंग्लिश में सेट किया और मैं उसे जर्मन में बात कर रही हूँ तो वो क्या मुझे कमांड को एक्सेप्ट करके देगा? यस गाइस, अगर मैंने इंग्लिश में कमांड दिया है और मैं जर्मन में उसको वापस से एक्सेप्ट करने का ट्राई करूं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नो, इट विल नॉट एक्सेप्ट, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर आपका एक बहुत ही स्लाइट सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है जिसका नाम है एनएलपी। समझ में आया? NLP is nothing but your natural language processing, जो आपके जितने भी लैंग्वेजेस है उनको टेक्स्ट के बेसिस पर, उनको वर्ड्स के बेसिस पर, उनको पैराग्राफ्स के बेसिस पर, उनको हर एक अलग अलग कॉमन कंफ्यूजन्स के बेसिस पर वो आपको नोटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड देन वो आपको प्रोसेसिंग परफॉर्म करके देता है। तो आपका जितना भी लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला पार्ट है, वो चाहे आपके जितने भी एजेंट्स में हो, वो जितना भी आपके चैटबॉट में हो, वो जितने भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस में हो, जो भी एजेंट्स है वहां पर जो भी आपके लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला पार्ट है वो आता है आपके NLP में, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर है इतना सबको? ओके उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके कमांड को रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है आपका मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग का डेफिनेशन ही होता है कि विच एनेबल मशीन टू लर्न लाइक अ ह्यूमन, राइट। तो उसने क्या किया, आपके कमांड को एक्सेप्ट किया एंड देन वो कमांड को आपको परफॉर्म करके दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जब मशीन को एनेबल कर रहे हैं कि भाई वर्क लाइक अ ह्यूमन, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, yes ma'am. guys, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, now guys we'll go in the flow of this only and we'll try to make the context in the sense of your today's topic. So सबसे पहले we have seen that we have a huge thing which is your artificial intelligence, correct? So this is your very big domain. After that you have something known as machine learning, which is your second domain. After that you have something known as deep learning, which is your third domain. And फिर ये जो आपके deep learning का part जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आपके deep learning वाला जो आप part यहाँ पर study करने वाले हो, ये deep learning के अंदर जो models बनते हैं, ठीक है, ये deep learning के अंदर जो models बनते हैं, the models are of two types. Okay, the models are of two types. The very first is your discriminative models and the second one is your generative AI models. ठीक है, तो आप ये अच्छे से या इजीली समझ सकते हो कि generative AI जो है वो किसका सबसेट है? generative AI किसका सबसेट होगा गाइस?
Ma'am, can you please repeat what you said? मैंने बोला कि you have something known as artificial intelligence, right? Then you have something known as machine learning. Then you have something known as deep learning, जो अभी जस्ट हम देख रहे हैं. और उसके अंदर जो मॉडल्स बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, ठीक है, और एक होता है आपका जेन एआई मॉडल, ठीक है. तो कैन यू टेल मी कि जेन एआई किसका सबसेट है? Of deep learning? यस, जेन एआई आपका डीप लर्निंग का सबसेट है. समझ में आया? जिसके अंदर आप डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को यहां पर यूज करोगे. एंड द न्यूरल नेटवर्क्स आर ANN, CNN एंड RNN. समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? और इसी के बेसिस पर, यही सारी चीजों के बेसिस पर आपके LLM मॉडल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है. तो हमारा जो मेन फोकस होगा आज के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का, दैट विल बी ट्रूली डिपेंडेंट ऑन योर ANN, CNN एंड RNN. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Okay, so yes, let's start with the implementation. So first we'll see that what do you mean by RNN and ANN, because it is very important, and then we'll implement CNN, ANN and RNN with each other. Okay, so let's start with the implementation. We'll use Google Colab. Okay, so if you will face any of the difficulty while solving the problems, just let me know. आपको just Chrome पर जाना है और यहाँ पर Google Colab को यूज करना है, ठीक है. So here we have Google Colab. ओके, अच्छा, सबको गूगल कोलैब के जैसे अंदर आप जाते हो, आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना साइन इन के ये आपको अथॉरिटी नहीं देगा उसको यूज करने की. तो यू हैव टू फर्स्ट साइन इन द थिंग्स, एंड आई हैव क्रिएटेड multiple PDFs for you, because as you are fresher in this all, so you have to see the things first and then you have to implement, right? तो मैंने आपके लिए कुछ PDFs बनाए हैं which is in the form of your deep learning algorithms. So just free to ask anything if you face any confusion. Okay, so the very first PDF which is dependent on the thing is your RNN implementation. ओके, सबसे पहले हम RNN को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हम ANN को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे चीजों को. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज RNN, which is your recurrent neural network. Now, what do you mean by RNN? So RNN is a type of neural network used for sequence data. Okay, guys, ये sequence data पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बेसिक पाइथन का एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ, एंड जस्ट लेट मी नो इट विल इम्प्लीमेंट द थिंग्स और नॉट. ठीक है, पाइथन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने x को एक वैल्यू दिया है 5, और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ x प्लस वाई, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर y को वैल्यू दे रही हूँ. क्या ये इस चीज को प्रिंट करके देगा? यस गाइस, क्या ये इस चीज को प्रिंट करके देगा? यस एवरीवन. देवेंद्र, विवेक, खुशबू, शिवम. नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? हम आपने पहले y का वैल्यू असाइन नहीं किया ना. मैंने इसको एक सीक्वेंस में नहीं लिखा है, राइट? यहां पर द सीक्वेंस इज नॉट प्रॉपर, करेक्ट? तो एक्चुअली में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको यहां पर x को लिखना होगा, देन हमको y को लिखना होगा, एंड देन हमको प्रिंट करना होगा x प्लस वाई. अब ये हमको प्रिंट करके देगा, राइट? तो वी हैव समथिंग नोन एज सीक्वेंशियल एल्गोरिथम. ओके, वी हैव समथिंग नोन एज सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, जो पाइथन में यूज होता है, जो आपके प्रोग्राम को एक सीक्वेंस देने के लिए काम आता है ना? एंड वाइस वर्सा. The second algorithm is conditional and the third algorithm is iterative. या तो आप इसको
लूप भी बोल सकते हो, करेक्ट। जो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कौन सा एल्गोरिथम है? सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका आरएनएन भी है वो आपके सीक्वेंस डेटा पर ही वर्क करेगा, यानी कि वो डेटा जो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है। सीक्वेंस डेटा मींस डेटा दैट कम्स इन ऑर्डर सच एज सेंटेंसेस, टाइम सीरीज डेटा और स्टॉक प्राइसेस। क्लियर? सो आपके ये जो भी डेटा से रिलेटेड डाउट्स है कि वो सेंटेंसेस में होना चाहिए, वो टाइम सीरीज में होना चाहिए, वो स्टॉक प्राइसेस के सेंस में होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यही टॉपिक्स पे बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद वी हैव समथिंग नोन एज व्हाई डू वी यूज आरएनएन। What is the use of RNN? So normal neural networks forgot previous inputs. अभी आपको यहाँ पर 2-3 confusions होगा कि मैम what do you mean by neural network? What do you mean by the things which you are implementing right now? So I will give you a quick example. Okay, we all have brain. Yes, we have, right? Yes or no, guys? Yes. And we have something known as neurons in our brain. Correct? न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? हमारे कोई भी इमोशंस को, हमारे कोई भी एक्शंस को या हमारी कोई भी फीलिंग्स को डिस्प्ले करना, करेक्ट, या तो रिकॉग्नाइज करना, है ना। लेट्स सपोज आई हैव अ हॉट कप ऑफ टी इन फ्रंट ऑफ मी, सो व्हाइल टेकिंग दैट कप ऑफ टी फर्स्ट आई नीड टू चेक दैट वेदर द कप इज हॉट और कोल्ड, राइट और नो? यस, फर्स्ट आई नीड टू चेक दैट वेदर द कप इज हॉट और कोल्ड। तो जैसे मैं कप को टच करती हूँ वैसे ही मुझे पता चलता है कि भाई ये कप गर्म है, तो मुझे इसके ऊपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर वो कप हल्का सा ठंडा है तो मुझे उसको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वहां पर हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स है जो हमको एक्शन करने का, हमको इमोशंस देने का या चीजों को फील करने का जो अथॉरिटी है वो दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही न्यूरॉन्स आपके मशीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है न्यूरल नेटवर्क्स। समझ में आया? इनको क्या बोला जाता है? न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स है आपके, ये बेसिकली आपके न्यूरल नेटवर्क्स आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन पावर देता है, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज वॉइस, क्या उसकी आवाज सही है, क्या उसका जो पैटर्न है वो सही है, क्या उसने जो इमेज यहाँ पर ड्रॉ किया है वो सही है, क्या उसने जो फोटो यहाँ पर रखा है वो सही है, क्या उसने जो ऑडियो यहाँ पर बनाया है वो सही है, या जो ऑडियो वो यहाँ पर रिप्ले कर रहा है वो स्टडी है, सही है। तो टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स वेरी वेल, टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स प्रिडोमिनेंटली हम यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। समझ में आया? और ये न्यूरल नेटवर्क्स आपके डीप लर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया, 3 तरह के होते हैं। समझ में आया? सबसे पहले होता है आपका ANN, दूसरा होता है आपका CNN और थर्ड होता है आपका RNN, जिसमें से अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका RNN। आई होप सबको न्यूरल नेटवर्क्स क्लियर होंगे, ठीक है। Yes. तो आपका जो RNN है वो आपके नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, जो आपके नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, या बेसिकली वो क्या करते हैं, प्रीवियस इनपुट्स को फॉरगेट करके चलते हैं। तो आरएनएन उन चीजों को, या आरएनएन आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को वहां पर स्टोर करके रखेगा एक मेमोरी की तरह या एक हिडन लेयर की तरह, एंड देन जब भी आपको कोई पैटर्न को या कोई भी चीजों को रिकॉग्नाइज करना होगा तो वो आपके प्रीवियस इनपुट के बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज करके देगा। क्लियर है सबको? ठीक है। After that, simple daily life example. So imagine watching a cricket match ball by ball. To know the total score, you must remember the previous balls. Obviously, अगर मैं आपको अभी just बैठे बैठे मैं आपको पूछ रही हूँ कि भाई what is the score, right? तो आपका जो स्कोर होगा या आपका जो बॉलिंग अमाउंट होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके स्टार्ट ऑफ द मैच से। क्या आप 1 मिनट में कैलकुलेट किए हुए बॉल्स मुझे बता सकते हो? इज इट पॉसिबल कि आपके जो 1 मिनट पहले वाले बॉल्स है वो आपका स्कोर है? नो, राइट? सो आपको क्या करना होगा? आपको स्टार्ट ऑफ द थिंग से चीजों को एनालाइज करना होगा, स्टार्ट ऑफ द थिंग से चीजों को इमेजिन करना होगा। तो आरएनएन भी आपका वही काम करता है, आपके प्रीवियस डेटा को एक्नॉलेज करके आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके देता है। समझ में आया? जो दूसरे न्यूरल नेटवर्क्स नहीं कर पाते, दूसरे न्यूरल या जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो आपके प्रीवियस डेटा को भूल कर चलते हैं या आपके प्रीवियस डेटा को फॉरगॉट करके चलते हैं। तो हमारा मोटिव ये होता है कि आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पर आपकी चीजों को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करना।
उसके बाद वी हैव समथिंग नोन एज हाउ टू वर्क ऑन RNN। तो आपका एक न्यू हिडन स्टेट होगा, ऑब्वियसली आपके पास एक न्यू इनपुट आएगा, आप उसके ऊपर प्रीवियस इनपुट को देखोगे और फिर करंट इनपुट को आप प्रिडिक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा चीज यूज किया जिसके बेसिस पर आपको उसका वर्किंग समझ में आए। अगर हम यहाँ पर आज क्या परफॉर्म करने वाले वो मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3, तो आप नेक्स्ट नंबर क्या प्रिडिक्ट करोगे? अगर 1 2 3 मैंने आपको दिया है तो आप नेक्स्ट नंबर क्या प्रिडिक्ट करोगे? 4 5 6 4। अगर मैंने आपको 2 3 4 दिया तो आप नेक्स्ट नंबर क्या प्रिडिक्ट करोगे? 5 5। अगर मैंने 3 4 5 दिया तो आप नेक्स्ट नंबर क्या प्रिडिक्ट करोगे? 6 6। तो RNN का यही काम है कि प्रीवियस इनपुट्स के बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। समझ में आया? yes ma'am ओके, नाउ वी गोना इम्प्लीमेंट। हम इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब आपका डीप लर्निंग का जितना भी जो भी सर्कमस्टेंसेस है, आपके डीप लर्निंग का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका टेंसर फ्लो के बेसिस पर परफॉर्म होगा। नाउ व्हाट इज टेंसर फ्लो हियर? तो आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस होती है, लाइब्रेरीज होती है। जैसे मशीन लर्निंग में अगर आपको कोई भी एल्गोरिदम को यूज करना है, आपको कोई भी एल्गोरिदम को यहाँ पर स्टडी करना है, तो आपको sklearn, scikit-learn, skiffy वगैरह से यूज करना होता है, बिकॉज दे आर दी लाइब्रेरीज जिनके अंदर से आप रिग्रेशन बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, ये वो सारे एल्गोरिदम्स को यूज करते हो। इफ यू वांटेड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इन डीप लर्निंग यू हैव टू इंपोर्ट द टेंसर फ्लो हियर। क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर numpy को इंपोर्ट करना होगा। numpy आपका पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो आपको एरे क्रिएशन वगैरह के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं numpy को इंपोर्ट करूंगी। सो लेट्स इंप्लीमेंट द वेरी फर्स्ट थिंग। सो इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, नाउ फ्रॉम टेंसर फ्लो, मुझे टेंसर फ्लो से बहुत सारी चीजों को लोड करना है। तो टेंसर फ्लो के अंदर से टेंसर फ्लो डॉट केरास मॉडल करके एक ऑप्शन होता है, ये भी एक लाइब्रेरी ही है। ये टेंसर फ्लो डॉट केरास मॉडल से मुझे सीक्वेंशियल को इंपोर्ट करना होगा। सीक्वेंशियल क्यों इंपोर्ट करना होगा? क्योंकि आपका RNN किस पे वर्क करता है? सीक्वेंस डेटा पे वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पर जो मॉडल क्रिएट होगा वो सीक्वेंशियल डेटा पर क्रिएट होगा। ठीक है, सो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स हम इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करोगे आप? सीक्वेंशियल को इंपोर्ट करोगे। समझ में आया? इतना क्लियर है? एंड अगेन फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, बट इस बार हम मॉडल्स में इंपोर्टेशन नहीं कर रहे, हम इस बार लेयर्स में कॉल कर रहे हैं चीजों को, और लेयर्स के अंदर से मैं सिंपल RNN और डेंस को इंपोर्ट करूंगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल RNN? सिंपल RNN इज नथिंग बट योर RNN का वन ऑफ द टाइप जिसके अंदर आप डेंस यानी कि फाइनल लेयर को यहाँ पर यूज करने वाले हो। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट सिंपल RNN एंड डेंस। ठीक है, सो डॉट लेयर्स import simple RNN एंड इसके साथ आप कॉल करोगे डेंस को। इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट गाइस? यस गाइस, प्लीज इंप्लीमेंट दिस 3 थिंग्स राइट नाउ। अभी के अभी इसको इंप्लीमेंट करो गूगल को लैब पे, एंड जैसे ही हो जाएगा लेट मी नो। एंड मैं किसी को भी स्क्रीन शेयर करने बोल सकती हूँ, तो प्लीज इंप्लीमेंट एवरीवन। प्लीज इंप्लीमेंट दिस 3 lines ASAP।
Done, guys? Yes, ma'am. Okay. So as you have imported your libraries and your TensorFlow के जितने भी implementations हैं, अब हमको यहाँ पर डेटा को import करना होता है, ठीक है? एंड आप जो डेटा आपने जो अभी यहाँ पर numpy को import किया है, यही numpy को आपको आगे जाकर implement करना है, ठीक है? तो ये numpy जो आपका first array होगा, यहाँ पर आपने दो arrays create किए हैं, ठीक है? X के अंदर आपने एक 2-dimensional array create किया है और Y के अंदर आपने एक 1-dimensional array create किया है, ठीक है? तो X के अंदर you have 2-dimensional array which has 3 elements which is 1 2 3 2 3 4 and 3 4 5, ठीक है? एंड Y के अंदर आपका 1-dimensional array है जिसका वैल्यू है 4 5 and 6. So let's create this array which is X equals to np dot array, ठीक है? And the array is 2-dimensional. अब ये 2-dimensional है वो कैसे पता चलेगा? आपके स्टार्टिंग और आपके एंडिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए हमेशा. समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो बना रहे हो दैट इज 1, 2, 3. उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर बनाओगे 2, 3, 4 एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट 3, 4, 5, ठीक है? तो ये आपका पहला एरे बन गया और नेक्स्ट यहाँ पर आप यूज करोगे y इक्वल्स टू np डॉट एरे 4, 5, 6, ठीक है? तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. ओके गाइस, इतना समझ में आया सबको? यस गाइस? Yes, ma'am. Yes, please make the array right now, x and y. डन गाइस? एरे क्रिएट हो गया सबका? Yes guys, yes or no? एरे क्रिएट हो गया सबका? No, ma'am. No, ma'am. Are you facing any difficulty? यस मैम, हो गया. ओके,
आपको समझ में आया एरे कैसे क्रिएट करना है? ठीक है। अब नेक्स्ट जो जैसे कि आपने एरे यहाँ पर क्रिएट किया, तो आपको अगर कोई चीज को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अगर आपको उसको RNN में इम्प्लीमेंट करना है या अगर आपको उसको CNN में इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको उसको रीशेप करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू डन विद द इम्प्लीमेंटेशन इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। तो रीशेप आपका एक ऐसा मेथड होता है जो आपके NumPy में यूज होता है टू रीशेप इट विद 3 rows 3 columns in 1 dimension। ठीक है, सो विल सिंपली रीशेप इट विद द हेल्प ऑफ x। So x equals to x dot reshape, ठीक है, वो होगा reshape 3,3,1 में। ठीक है, तो अगर आप अभी अपने x को देखोगे तो इट्स लाइक दिस। क्लियर? आफ्टर रीशेपिंग द वैल्यू आपको यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो आपको मॉडल क्रिएट करना है किसके बेसिस पर? सीक्वेंशियल के बेसिस पर, क्योंकि आपको आपका जो RNN है वो किस पे काम करेगा? आपके सीक्वेंस डेटा पर, है ना। तो मैं यहाँ पर मॉडल के अंदर उसको यूज करती हूँ, मॉडल इक्वल्स टू सीक्वेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मॉडल है वो बनके रेडी है। ठीक है, अब मॉडल बनने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप मॉडल को क्रिएट करते हो तो आपको मॉडल के अंदर आपके जितने भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, आपके जो भी इनपुट शेप्स है या आपका जो भी न्यूरल नेटवर्क आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, आपको उसको बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पर मॉडल के अंदर ऐड करेंगे सिंपल RNN को, बिकॉज हम RNN का एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक्टिवेशन करेंगे रेल्यू का। ठीक है, रेल्यू इज एन एक्टिवेशन जब आपका डेटा नेगेटिव में प्रेजेंट होगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर मॉडल। तो आप क्या करोगे, अगर आप वहां पर रेल्यू को यूज कर रहे हो तो आपका जो नेगेटिव डेटा है वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर रेल्यू को यूज करते हैं। एंड हमारा जो इनपुट शेप है, इनपुट शेप विल बी 3,1 विच इज 3 rows and 1 column टाइप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले मॉडल को ऐड करते हैं। सो मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड, हम यहाँ पर ऐड किसको करने वाले हैं? सिंपल RNN को, राइट? सिंपल RNN को, इसके फीचर्स होंगे 10 एंड एक्टिवेशन होगा रेल्यू। सो सिंपल RNN, ठीक है, सिंपल RNN के फीचर्स है 10। ओके, एक्टिवेशन जो होने वाला है वो किसका एक्टिवेशन होने वाला है? यहाँ पर रेल्यू का। ओके, एंड एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर एंड पॉइंट पे हमको यहाँ पर यूज करना होगा कि कितना उसका इनपुट शेप है। ठीक है, सो द इनपुट शेप विल बी 3,1। क्लियर? जैसे ही आपने यहाँ पर मॉडल के अंदर ये सारी चीजों को ऐड कर दिया, जस्ट अ मिनट, रेल्यू इनपुट शेप 3,1 एंड वी हैव 3 brackets, activation रेल्यू इनपुट शेप, everything is right. Positional arguments follow keyword. Model dot add simple RNN. Just a minute. Ten ReLU, no problem. कभी कभी spelling mistake भी होती है. We'll take the slight line from here and we'll implement here for not wasting the time. So yes. Model dot add simple RNN. Then we have 10 inputs. We have activation will be ReLU, and then we have something known as input shape, which will be 3,1. Yes, now it's get implemented. Okay, after implementing this, हमको यहाँ पर जो हमारा फाइनल लेयर होता है उसको यहाँ पर कॉल करना होता है. So we'll simply use model dot add dense और उसके अंदर हम 1 को कॉल करेंगे. Okay, because हमको एक ही फाइनल लेयर बनाना है. तो model dot add
विल कॉल डेंस हियर एंड डेंस के अंदर हम यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे। तो हमारे दोनों भी चीजें जो हमको मॉडल में ऐड करनी थी वो अब हमको ऐड होकर मिल गई है। अब जैसे ही आप यहाँ पर मॉडल को बनाते हो, आप मॉडल के अंदर चीजों को ऐड करते हो, आपको मॉडल को कंपाइल करना होता है, बिकॉज in any of the model or in any of the AI agent, compile anything is very important. Okay, so हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं दो चीजों से, एक तो आपके ऑप्टिमाइजर से और एक दूसरा आपके लॉस से। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट हम जो यहाँ पर ऑप्टिमाइजर यूज करने वाले हैं दैट वाज एडम। ठीक है, एंड द लॉस फंक्शन विच वी आर यूजिंग हियर इज मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, सो लेट्स कंपाइल द मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, एंड यहां पर हम ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, विल यूज द ऑप्टिमाइजर एडम एंड द लॉस फंक्शन विल बी MSE which is mean squared error. Okay, after implementing with your compilation, हम यहाँ पर सिंपली मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड देन फिर टेस्ट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर हम सिंपली मॉडल के अंदर वैल्यू को फिट करेंगे, सो मॉडल डॉट फिट, और हमने ऊपर जो वैल्यू क्रिएट की थी हम वो यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको कितने सजेशंस देखने हैं, मतलब कितने प्रिडिक्शंस देखने, तो लेट्स सपोज मुझे 200 प्रिडिक्शंस देखने, तो हमने यहाँ पर एपॉक को कॉल किया है एंड यू हैव 200 suggestive measures here. With the help of that you can see that how many suggestions you will get. Okay, after the implementation done you will see the 200 suggestions are present here. Okay, after implementing with this 200 suggestions you will simply have to predict the value. So how you will predict the value, will simply take a variable जिसके अंदर आप एक नया एरे क्रिएट करोगे एंड देन फिर उस एरे को आप यहाँ पर प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, सो टेस्ट इक्वल्स टू np डॉट एरे, और एरे विल बी 2 डायमेंशनल विच विल बी 4, 5 एंड 6। अच्छा, मुझे बताओ अगर मैं उसको बोलूं 4, 5, 6 प्रिडिक्ट करने के लिए तो उसने मुझे क्या देना चाहिए? यस गाइस, 7 देना चाहिए, राइट? तो मैं पहले इसको रीशेप करती हूं विथ 1, 3, 1। यस, ठीक है, एंड सिंपली इसके वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एंड सिंपली ये टेस्ट को मैं यहाँ पर यूज करूँ। तो यस 4, 5, 6 द एस्टिमेशन आंसर इज 5.6 विच विल बी 6 समवॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉपर एक्टिवेशन तुमको इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज कभी कभी फ्लक्चुएशंस की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 करोगे एंड देन फिर उसको यहाँ पर यूज करोगे तो यू विल गेट 6, मतलब अप्रोक्सीमेट एक लास्ट वाला एस्टिमेशन मिल रहा है। कभी कभी ये चीज होती है बिकॉज ऑफ दिस एपॉक, अगर आप एपॉक के वैल्यू को बढ़ा दो या यहाँ पर बढ़ा कर यूज करो देन यू विल फाइंड द आंसर्स। ठीक है, तो यस, स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम हियर, from reshape you have to implement the things, start implementation. Hello, ma'am. Are we getting this PDF? I'll let you know. First, I'll let me know with my management team, and then I'll let you know. Okay, ma'am. Yes.
Done, guys? Yes. सबका हो गया? Everyone done, guys? देवेंद्र, हसन, विवेक, शिवम, वंदन, प्रताप, खुशबू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Done. सो यहाँ पर अभी जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है दैट वाज योर RNN, करेक्ट? नाउ अभी जो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है या जो अभी हम जस्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं दैट वाज योर ANN, व्हिच इज योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, जो क्या है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है कि आपके जो 3 टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क है उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वाज ANN. ठीक है, सो एन ANN और योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मेथड या कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन. जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है या ह्यूमन ब्रेन आपकी चीजों को प्रोसेस करता है, ठीक वैसे ही आपका ANN काम करता है. It is widely used in the field of artificial intelligence machine learning to recognize patterns, making predictions and solve complex problems. ठीक है, वो चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन हो, वो चाहे आपका मशीन लर्निंग का डोमेन हो, वो चाहे आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाला चीज हो या प्रिडिक्शन करने वाला पार्ट हो, वो सारा आपका किस में यूज होगा? आपका ANN में यूज होगा. An ANN consists of interconnected units called neurons that process information. Again, as I've told you that we have something known as neurons, we have something known as neural networks, which precede the things, which gone through with the things, and the processes which we are performing here is nothing but based on your neurons only. Okay? These neurons are organized into layers and the networks learn by adjusting the connection between them based on data it receives. Okay? The very first thing जो हमको आज यहाँ पर implementation perform करना है that will be dependent on a very basic daily life example, and to understand ANN we have to consider that how to learn and how to identify a child learns to identify a dog. Okay, so एक basic सा example है. यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? A child sees different animal as we aware of this. उसके बाद अगर वहां पर लेट्स सपोज 5 एनिमल्स हैं जिनमें से एक डॉग है और बाकी के डॉग्स नहीं है, तो द पेरेंट विल से दैट दिस इज डॉग एंड दीज आर नॉट डॉग, right? So after seeing many examples, the child begin to notice patterns that childs have 4 legs, dogs have 4 legs, dogs have fur and dog bark, right? So depending on some of the features, depending on some of the notifications, depending on some of the patterns, we can recognize that this is a dog, right? So yes, we have to see the thing right this. आफ्टर दैट जो अभी हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है वो एग्जाम्पल बेस्ड है आपका स्पैम ईमेल डिटेक्शन के बेसिस पर. सपोज वी वांट टू बिल्ड अ सिस्टम दैट डिटेक्ट्स वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम. जैसे कि आप लोग देखते हो कि हमारे पास मेल वगैरह पर या चैट बॉक्स वगैरह पर बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं जो स्पैम होते हैं, है ना? तो इनको हमको उसका इनपुट फीचर चेक करना होता है और हमको देखना होता है कि वेदर द फीचर्स आर राइट और रॉन्ग. तो अभी यहाँ पर हमने ऐसे 3 फीचर्स निकाले, जैसे कि अगर ईमेल में कोई भी वर्ड फ्री करके लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली एट समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा फ्री वर्ड यूज हो रहा है तो द ईमेल इज स्पैम. द फीचर 2 विल बी ईमेल कंटेन्स मेनी लिंक्स. अगर उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स है, अगर वो आपको बहुत टाइप ऑफ पेमेंट करने के लिए बोल रहा है कि व्हेन यू क्लिक दिस लिंक यू विल गेट दिस अथॉरिटी, व्हेन यू क्लिक दिस लिंक यू विल गेट दिस अथॉरिटी, सो ऑब्वियसली द मेल इज योर spam, and if the sender is not present or the sender is unknown, then also the mail is spam. Okay, so depending on this 3 things हमको 2 कंक्लूजन मिलेंगे कि या तो हमारा मेल स्पैम है या तो हमारा मेल स्पैम नहीं है. तो यहाँ पर मैंने उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया है. जहां पर आपका फ्री लिंक प्रेजेंट है वो 1 है, जहां पर आपका लिंक प्रेजेंट है वो 1 है, जो अननोन सेंडर है वहां पर 1 है. मतलब जहां पर प्रेजेंट होगा वो स्पैम होगा, जहां पर नहीं है वहां पर 0 है और वो नॉट स्पैम. ठीक है, so let's compose this with the help of implementation. तो आपके यहाँ पर गाइस 3 चीजें होती है. सबसे पहले होता है आपका इनपुट लेयर. ठीक है, इनपुट लेयर आपके चीजों को प्रोसेस करेगा या आपके चीजों को ओबे करेगा कि भाई दिस इज द डेटा, यहाँ से आपको इतना डेटा आने वाला है. देन वो डेटा आपके इनपुट लेयर का जो डेटा होगा वो आपके हिडन लेयर को पास होगा. ठीक है, हिडन लेयर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मेमोरी, अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ अ मेमोरी chip only, which basically read the previous data and depending on the previous data it will give you the conclusion, and then जो conclusion आपको मिलेगा that will be dependent on your output layer. So you have 2 things. The very first is your not spam and the first thing is your spam. Okay, so depending on your input layer you will gonna learn that how to predict the hidden layer, and after getting the answer you will finally get the output layer. Okay,
तो यहाँ पर आपके 3 फीचर्स हैं, फ्री वर्ड्स, लिंक्स एंड सेंडर, जो आप पास करोगे हिडन न्यूरॉन्स को, एंड देन ये हिडन न्यूरॉन्स आपको वो चीज स्पैम है या नहीं उस चीज को कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव 3 थिंग्स, जैसे कि सबसे पहला था आपका फ्री वर्ड, उसका वेट है 0.8, लिंक है उसका वेट है 0.6, और सेंडर है जिसका वेट है 0.2। तो a higher weight means the feature has strong influence on the final output. जितना ज्यादा इनपुट का वेट होगा तो आउटपुट का जो फीचर होगा उतना ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट द थिंग, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू इम्पोर्ट द थिंग्स, जैसे कि सबसे पहले हमने टेंसर फ्लो को इम्पोर्ट किया, उसके बाद टेंसर फ्लो डॉट केरास मॉडल से सीक्वेंशियल को इम्पोर्ट किया, एंड देन सेम टेंसर फ्लो डॉट केरास लेयर से डेंस को इम्पोर्ट किया। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। इम्पोर्ट, पहले numpy को भी इम्पोर्ट कर लेना, बिकॉज आपका नीचे जो परफॉर्म होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर numpy ओनली। इम्पोर्ट numpy एज np, इम्पोर्ट tensorflow एज tf फ्रॉम tensorflow डॉट keras डॉट मॉडल्स। इम्पोर्ट किसको इम्पोर्ट करना था हमको गाइस? सीक्वेंशियल को इंपोर्ट करना था और लेयर्स से डेंस को इंपोर्ट करना था, राइट। सो मॉडल से हमने सीक्वेंशियल को इंपोर्ट किया है, एंड विद दैट सेम फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट keras डॉट लेयर्स विल सिंपली इंपोर्ट डेंस। ओके, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग थिंग्स इंपोर्टेड, हम यहाँ पर 2 एरेज क्रिएट करेंगे जिसके फीचर्स अलग अलग होंगे। जैसे फ्री और लिंक को अगर आप कंसिडर कर लो, तो पहले में लिंक भी नहीं प्रेजेंट है और फ्री वर्ड भी नहीं प्रेजेंट है, तो वो नॉट स्पैम है। फिर फ्री वर्ड प्रेजेंट नहीं है और लिंक प्रेजेंट है, तो वो भी स्पैम है। अगर फ्री वर्ड प्रेजेंट है और लिंक प्रेजेंट नहीं है तो भी वो स्पैम है। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर स्पैम नहीं है। तो हम यहाँ पर दोनों को यूज कर लेंगे numpy एरे के बेसिस पर, ठीक है। तो विल सिंपली x equals to np dot array, ठीक है। How many dimensions do you have? So you have 2-dimensional array, okay, which will be 0,0, 0,1, 1,0 and 1,1, ठीक है। y equals to np dot array, अगर 0,0 है, मतलब अगर फ्री भी लिंक प्रेजेंट नहीं है और लिंक भी नहीं, फ्री वर्ड भी नहीं प्रेजेंट और लिंक भी नहीं प्रेजेंट है, तो वो स्पैम नहीं है, विच इज 0, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वैल्यू विल बी 0। उसके बाद अगर फ्री वर्ड नहीं प्रेजेंट है लेकिन लिंक प्रेजेंट है, तो भी वो क्या है? स्पैम ही है, अगेन विल टेक 0, ठीक है। उसके बाद अगर फ्री लिंक प्रेजेंट है बट स्पैम उसका क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड प्रेजेंट है बट लिंक प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज ऑल्सो 1, and then we'll take 0, ठीक है। So that goes in a flow which is 0, 1, 1 and 1, ठीक है। Now we'll create a model, okay। So after implementation we'll create a model and the model will be there on, or it will based on your sequential, okay। So here your model is completed. After creating your model you have to add a hidden layer, because आपके hidden layer के basis पर ही सारी चीजें perform होने वाली है। तो सबसे पहले हम hidden layer बनाएंगे, then उसके बाद हम एक dense वाले layer को बनाएंगे, which is your final layer, and then we'll see the things, okay। So first is your hidden layer and then second is your dense layer, okay। So we'll implement like that only। So model dot add, ठीक है। हमको क्या ऐड करना है यहाँ पर? पहले डेंस को ऐड करना है, जिसके 4 फीचर्स है, डायमेंशन 2 है। सो सबसे पहले हमने ऐड किया है डेंस को, विच हैज 4 फीचर्स। सो डेंस विच हैज 4 फीचर्स। उसके बाद वी हैव समथिंग नोन एज इनपुट, ठीक है, राइट। सो नंबर ऑफ इनपुट डायमेंशंस आर 2, ओके। सो इनपुट डायमेंशंस will be 2,
and after input dimensions, what you have to take here, you have to activate your ReLU. So the activation will be depending on your ReLU. ठीक है? After that you have to make one more layer which will be your dense. बट ये फाइनल लेयर है तो इसमें एक ही फीचर यूज होगा और इस बार एक्टिवेशन जो होगा वो सिग्मॉइड के बेसिस पर होगा. ठीक है? सो लेट्स टेक द डेंस फीचर. आफ्टर दैट वी हैव वन and the activation will be in sigmoid. Okay, so okay, where we'll get the things. Dense input dimension will be, okay, dimension t will be in small letter. Sigmoid. Sigmoid do not have this. Activation equals to sigmoid. That is correct. Activation equals to sigmoid. Okay, done with the implementation. Then हमको क्या करना होगा? As usual हमको हमारे मॉडल को कंपाइल करना होगा. कंपाइल जो होगा वो आपका ऑप्टिमाइजर और लॉस के बेसिस पर होगा. सो मॉडल डॉट कंपाइल. ठीक है, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे किसके बेसिस पर? ऑप्टिमाइजर के बेसिस पर. सो ऑप्टिमाइजर विल बी योर ADAM and the loss will be your MSE, which is mean squared error. After compiling your model, you have to train the things. Here, you don't have to use your MSE, you have to use your binary Cross-entropy. ठीक है? Binary Cross-entropy. ठीक है? Because it is used to add some more advancement in your compilation, so that's why you're using here. And after doing this, simply you have to fit the model and you have to predict the value. So model dot fit. ठीक है, we have to fit x comma y, and इस बार epoch के basis पर हमको let's suppose 1000 values को यहाँ पर predict करना है, and we'll simply print model dot predict. ठीक है, इस बार हम predict करेंगे हमारे x value को, जो भी x हमने वहां पर प्रेजेंट किया है उसको. So yes, by doing this you will get the implementation and you will find the proper artificial neural network for that. Clear guys? Any doubts? No ma'am. Okay, just implement it from the start of the thing. Yes guys, done with the implementation. Yes or no? Khushbu, Shivam, Hassan, done or not?
No, ma'am. Can you share your screen with me? I wanted to see how much you have implemented. Please share your screen. Yes, Khushbu, please share your screen. Shivam. Yes, guys. Okay, Shivam, you are implementing on laptop and you have joined with phone, right? Okay, nice. Well and good. Yes, Khushbu. Yes, Khushbu. Hassan. Please show your implementations. Devendra. Okay, Hassan, you have implemented till binary Crozen trophy. Okay. आगे का आपको बस प्रिंट करना है एंड देन वो ओके फाइन. यस, नेक्स्ट. वंदन, प्रताप, शुभम, माधुरी, प्लीज शेयर योर स्क्रीन्स. Pratap is sharing the screen. Okay, you have done with this much. Okay, fine. Good, well and good. Next. Vandan, yes, you have shared your screen. Okay, you have implemented till binary Crozen trophy implementation, and then fit model, predict value. Okay, fine, guys. Nice to see that you have implemented till where I have implemented. So after that, when you have complete with this implementation, you have something known as the life cycle real life example, that आप ये चीजों को कहाँ यूज कर सकते हो. तो इमेज रिकॉग्निशन में यूज कर सकते हो, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज कर सकते हो, मेडिकल डायग्नोसिस में, फ्रॉड डिटेक्शन में, रिकमेंडेशन सिस्टम में, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ये सारे आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है, या ये आपके सारे एआई के एग्जाम्पल्स है जहां पर आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. समझ में आया? इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक जॉइंट पीडीएफ बनाया है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है अभी कुछ टाइम बाद. सो इट इज बेस्ड ऑन योर CNN, ANN एंड RNN. ठीक है. एंड ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी जस्ट इम्प्लीमेंट किया है, ये आपका फूड डिलीवरी ऐप के बेसिस पर है. ठीक है. अब देखो, आपने ANN, CNN और RNN को अलग अलग देखा है, बट अभी आप जब एक साथ उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर 3 ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. ओके. So the first will be your food image, the second will be your order features. So obviously अगर आप image के basis पर recognize करोगे तो that will be dependent on CNN. After that अगर आप वहाँ पर order features या उनके features के basis पर करोगे तो that will be dependent on your RNN. Okay. And अगर आप उसके text के basis पर करोगे तो वो ANN के basis पर होगा. Right. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले CNN के basis पर image classify करना है. ठीक है. So सबसे पहले हम यहाँ पर फूड इमेज क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे एंड दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर CNN. ठीक है. सो फर्स्ट विल इम्प्लीमेंट इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एज TF फ्रॉम tensorflow.keras import layers. ठीक है. तो हम ठीक वैसे ही इंपोर्ट करते हैं जैसे हमने पहले इंपोर्टेशंस किए थे. सो here will get the value from TensorFlow as TF. Okay. So first line is implemented. The second is, Ma'am, I am unable to see your screen. okay, you are unable to see my screen. Okay. Now my screen is visible. Yes, ma'am. यस. सो मैंने यहाँ पर टेंसरफ्लो और tensorflow.keras से लेयर्स को इंपोर्ट किया है. ठीक है. देन जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होगा, या आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होगा, या आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा, तो उसमें आपके लेयर्स होते हैं, है ना. उसमें आपके लेयर्स होते हैं विच विल बी लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3. तो यहाँ पर भी मैंने 3 लेयर्स को अलग अलग किया है. सबसे पहले आपका फर्स्ट लेयर जो आपके 32 फीचर्स से बना है, which will be in the form of 3,3. इसके अंदर आपने एक्टिवेशन किया है रेल्यू का, और इनपुट शेप जो है वो है आपका 64x64x3. ठीक है. एंड यहाँ पर आपने मैक्स पूलिंग 2D को यूज किया है. आपका मैक्स पूलिंग 2D जो होता है दैट इज नथिंग बट विच इज यूज टू रिड्यूस द फीचर. अगर कभी कभी ऐसा है कि कोई अनवांटेड फीचर आपके लेयर में है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रिडिक्शन कभी कभी गलत भी हो सकता है. तो आप यहाँ पर मैक्स पूलिंग 2D को यूज करोगे विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2,2 विच इज 2 rows एंड 2 columns. ठीक है.
After that, you have your second layer, which is 64 features, which will be in the form of 3,3, which is 3 rows and 3 columns. Again, आप यहाँ पर activation करोगे ReLU का, and the max pooling features will be your 2,2. ठीक है. देन ये दो फीचर्स बनने के बाद या ये दो लेयर्स बनने के बाद जो आपका फाइनल लेयर है वो आपका डेंस के बेसिस पर बनेगा, फ्लैटन के बेसिस पर बनेगा, जिसके स्टार्टिंग में आपके 64 फीचर्स है. एक्टिवेशन जो है वो आपका ReLU का है, डेंस जो है वो आपके 3 फीचर्स है, और इसके अंदर आपने एक्टिवेशन किया है सॉफ्टमैक्स का. ठीक है, तो एक साथ आपने 3 लेयर्स को यहाँ पर यूज किया है, तो मैं भी सेम वहां पर जो 3 लेयर्स आपने यूज किए हम उसको वापस से अभी जस्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वहां पर लिख कर रखा था, अब आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो मैंने सेम चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया. ठीक है, 3 लेयर्स को क्रिएट करने के बाद आपको एज यूजुअल मॉडल को कंपाइल करना पड़ता है. तो आप यहाँ पर मॉडल को कंपाइल करोगे विद ऑप्टिमाइजर एंड कैटेगोरिकल क्रोजन ट्रॉफी. ठीक है, एंड आपने यहाँ पर एक और चीज यूज किया जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स एक्यूरेसी. ठीक है, मैट्रिक्स एक्यूरेसी आपके मॉडल का एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज होगा कि हाउ मच एक्यूरेट योर मॉडल इज. ठीक है, सो लेट्स कंपाइल द मॉडल, let's get the loss and let's get the Crozen trophy. So while calling your model you will get the sequential number 2. It means कि आपका जो convolutional neural network है वो properly यहाँ पर work कर रहा है. ठीक है, आपको implementation इसलिए नहीं दिख रहा है because आपको implementation इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर because यहाँ पर आपको तीनों को एक साथ इंप्लीमेंट करना है. ये एक जनरेटिव एआई के बीच का पार्ट है जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हो. ठीक है, जस्ट डू इट गाइस, यहां से करना स्टार्ट करो. TensorFlow.keras और ये जो मैंने इंप्लीमेंट किया है वहां से इंप्लीमेंट करो. यू हैव ओनली 3 to 4 minutes टू डू दिस. डू इट नाउ एंड आई विल आस्क एनीवन टू शेयर द स्क्रीन, सो प्लीज इंप्लीमेंट इट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. Done, guys? Done with the implementation? Yes. Yes. Shubham, please share your screen. Wanted to see how much you have completed. Yes, Shubham. Can you hear me? Madhuri, please share your screen. Devendra. Bandhan, please share your screen. Okay, so you have completed till here, right? Okay, fine. Now guys, after completing this, you have completed with your CNN. Okay,
Next part which you have to implement here, that is dependent on your ANN, which is your rating prediction, जो आपकी 3 कैटेगरीज के बेसिस पर था. सबसे पहले आपका प्राइस, आपका डिलीवरी टाइम एंड देन आपका डिस्काउंटेड प्राइस. करेक्ट. तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप यहाँ पर अगेन टेंसरफ्लो केरास से सीक्वेंशियल, टेंसरफ्लो केरास लेयर्स से डेंस और Your नंपाई. screen is not visible to. Okay, Your I'll screen share is my not screen. visible. So sorry. 1 minute. Now my screen is visible. Yes, ma'am. ओके. सो एज यू हैव सीन, मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी हमको इम्पोर्टेशन जो करना है वो हमारा ANN के बेसिस पर करना है, राइट. तो ANN में सबसे पहले आपको टेंसरफ्लो, ठीक है, टेंसरफ्लो केरास से सीक्वेंशियल को और टेंसरफ्लो केरास लेयर से डेंस को और नंपाई को इंपोर्ट करना होगा. सो इजीली हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इंपोर्ट numpy as np, import tensorflow as tf from tensorflow dot keras dot models. वहां से हमको इंपोर्ट करना है सीक्वेंशियल को. ठीक है. And with this TensorFlow only, so from TensorFlow dot keras dot layers import dense. ठीक है. As we have covered this much, so हमने यहाँ पर इतना importation कर लिया. ठीक है. Now guys, after importing all these things, हमको यहाँ पर data create करना होगा for ANN also. तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा array बनाया है जिसमें 3 elements हैं. तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं यहाँ पर दोनों एरेज जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, मैं सिंपली उसको यहाँ पर यूज कर रही हूँ. ठीक है. बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो कैपिटल एक्स है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एक्स. ठीक है. तो यहाँ पर आपका एक्स बन के रेडी है एंड देन आपका वाई भी बन के रेडी है. जैसे ही आप एक्स और वाई को यहाँ पर यूज करते हो, अगेन आपको क्या करना होता है, आपको मॉडल क्रिएट करना होता है. आपका मॉडल जो होगा वो सीक्वेंशियल के बेसिस पर बनेगा. डेंस विल बी ऑफ 10 फीचर्स, एक्टिवेशन विल बी ऑफ रेल्यू एंड इनपुट शेप विल बी 3. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो हिडन लेयर होगा उसके अंदर भी आप रेल्यू को एक्टिव करोगे एंड देन फाइनल लेयर जो होगा आपका वो आपका एक ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पर विल इम्प्लीमेंट इट विथ 3 लेयर्स विच इज सीक्वेंशियल, डेंस एंड फ्लैटन. ठीक है. So here you have implemented with your 3 layers. तो जैसे ही आप यहाँ पर मॉडल को देख रहे हो तो मॉडल कितने बेसिस पर बना है, 3 लेयर्स की बेसिस पर बना है. ठीक है. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग विथ योर मॉडल, तुमको मॉडल को कंपाइल करना होता है एंड देन वैल्यू को फिक्स करना होता है, राइट. सो हम यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे मॉडल डॉट कंपाइल. ठीक है. कंपाइल के अंदर सबसे पहले हम ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं. सो ऑप्टिमाइजर इक्वल्स टू एडम एंड loss equals to MSE. Okay, we'll simply print model dot predict और हम predict करेंगे x को. ठीक है. तो ये x की आपकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो आपको यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड मिल जाएंगी. समझ में आया. अगर आप चाहते हो कि आपको x और y के बेसिस पर देखना है तो आप यहाँ पर मॉडल को फिट भी कर सकते हो. सो मॉडल डॉट फिट x, y एंड मुझे कितनी पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, तो लेट्स सपोज मुझे 1000 पॉसिबल वैल्यूज देखनी है. ठीक है. तो आपकी वो 1000 पॉसिबल वैल्यूज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी. ठीक है. सो हियर यू गेट द इम्प्लीमेंटेशन फॉर योर ANN. Implement it fast, guys. You have only 5 to 10 minutes to implement this. What is the first line? From TensorFlow.keras.
यस, बोलिए। मैम फर्स्ट लाइन क्या था इसका? फ्रॉम टेंसर को वो इंपोर्ट किया है तो उसका फर्स्ट लाइन क्या था? नहीं आ रही शिवम, कैन यू प्लीज? मैम फर्स्ट लाइन आप जो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, उसका फर्स्ट लाइन क्या था? इंपोर्ट कहाँ से फर्स्ट किया? लाइन, ओके ओके ओके, आई विल शेयर, जस्ट अ मिनट। Yes, guys, now it is visible. यस मैम। Done, guys? Have you done with the implementation? Yes? Vandan, can you please share your screen? Vandan, Pratap, Shubham, can you please share your screen? मैम आपकी स्क्रीन शेयर है। Sorry? आपकी स्क्रीन शेयर है, मेरी नहीं हो पाएगी। ओके ओके, मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ, आप प्लीज एक बार आपकी स्क्रीन शेयर करो। Okay, so you have done with this compilation model.fit. Okay, activation. Okay, nice work. Yes, Shivam, please share your screen. You are doing it with two things. Okay. Can you please go little bit closer? Okay. So you have done till compile, then you have done with the importation of TensorFlow. Okay, you are on the second line only. Yes, my laptop is slow, ma'am. It's fine. Okay, no problem. Please do it fast. Yes, Khushbu, please share your screen. Khushbu, please share your screen. देवेंद्र, हसन, वंदन, अच्छा वंदन है तो आपने तो बताया, उबैदुल्ला, शुभम, माधुरी, शेयर योर स्क्रीन. Okay, so Shivam, Hassan, you have done till. Can you please go downwards? Okay, you have done till here. Okay, fine. Okay, so as many of you have implemented, now I'll share my screen and we're done with the last implementation, which will be based on your ANN. Okay. So what we are doing here is we have done with the implementation of that. Now we have to do with the implementation with the help of your RNN, which is the last neural network which you have to study. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कस्टमर रिव्यू चेक करना है कि whether the review is positive or negative. So to check the review of the customer, first you have to import
TensorFlow. Then from TensorFlow.keras, you have to import embedding, simple RNN, and dense, because these three are the modules which plays a very important role, in your TensorFlow. And from TensorFlow.keras, you have to import sequential. And then at the very first position, जैसे कि हमको यहाँ पर arrays को create करना है, तो हमको यहाँ पर numpy को भी import करना होगा. So let's implement it. So import numpy as import numpy as np, import TensorFlow as tf, from TensorFlow.keras .models, we have to import, क्या import करना था guys हमको? Embedding. सबसे पहले sequential को import करेंगे models से. So the very first we have imported with the sequential, and from TensorFlow.keras will use layers, and for that layers we have to import simple RNN. ठीक है, जैसे कि हम import करते हैं, हम embedding को import करेंगे. ठीक है, embedding is nothing but one of your process, and with that embedding हम यहाँ पर dense को भी import करेंगे. ठीक है, just a minute from okay, यहाँ पर आपका dot आना चाहिए. These also have to implement. Okay, so after done with your implementation, the next step which we have to do here is हमको यहाँ पर as usual data को create करना है. तो हम यहाँ पर x और y को बिना time waste किए create करते हैं, which has 4 features. So the very first is your x, जिसके अंदर है आपका array which is 1 2 3 4, and y के अंदर again आपका एक और array है which is also one dimensional. तो अगर आप यहाँ पर x को कॉल करोगे तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, एंड यही x और y को आपको नीचे यहाँ पर कॉल करना है. ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस, जैसे आपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, यू हैव योर मॉडल, राइट. और वो मॉडल के अंदर जब आप मॉडल को क्रिएट करते हो तो आपने देखा आप यहाँ पर सीक्वेंशियल को कॉल करते हो. आप सीक्वेंशियल के अंदर से डिफरेंट आउटपुट्स, पैराडिग्म्स और जो भी आपके इनपुट और आउटपुट फीचर है उसको कॉल करते हो. सिंपल आरएनएन जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हो उसके अंदर आपके 16 फीचर्स यूज होंगे, एंड वही 16 फीचर्स के साथ आपका एक फाइनल डेंस में लेयर बनेगा जिसके अंदर एक्टिवेशन होगा सिग्मॉइड के बेसिस पर. ठीक है, सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस. सो मॉडल इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, और इस सीक्वेंशियल के अंदर सबसे पहले हमने यूज किया है सिंपल आरएनएन को. तो मैं इसको ब्रेक करके आपको बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो सीक्वेंशियल के अंदर आपने किसको यूज किया? एम्बेडिंग को यूज किया. ठीक है, एम्बेडिंग के अंदर कितने इनपुट डायमेंशन थे? 10, और आउटपुट डायमेंशन कितने थे? 8. उसके बाद आपने सिंपल आरएनएन को कॉल किया, और सिंपल आरएनएन में आपके कितने फीचर्स है? 16 फीचर्स है. उन 16 फीचर्स में से आपको डेंस को फाइनल लेयर में कॉल करना है, जिसका फर्स्ट एक ही फीचर होगा और एक्टिवेशन होगा सिग्मॉइड में. समझ में आया? सो डेंस will be 1 and activation will be in the form of sigmoid. क्लियर? तो यहाँ पर आपने एक्टिवेशन किया सिग्मॉइड के बेसिस पर, और यहाँ पर डेंस को कॉल किया आपने एक लेयर के बेसिस पर. क्लियर है इतना? So yes, here you have completed with your model. When you call your model here, you will see that the implementation is done. Clear? After doing this implementation, आपको यहाँ पर as usual मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा. So कंपाइल आप करोगे ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन के बेसिस पर. So model.compile आप कंपाइल करोगे ऑप्टिमाइजर के बेसिस पर. ऑप्टिमाइजर यूज होगा अडम, एंड लॉस फंक्शन यहाँ पर यूज होगा व्हाट वी हैव टू टेक सिग्मॉइड, एमएससी और दिस. सो यस, वी आर टेकिंग द लॉस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी क्रोजन ट्रॉफी. सो बाइनरी क्रोजन ट्रॉफी. ठीक है, सिंपली यहाँ पर मॉडल कंपाइल हो गया. मॉडल को हमको फिट करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, विद द हेल्प ऑफ x, y एंड एपॉक. इट मीन्स हमको कितनी पॉसिबल वैल्यूज को देखना है. लेट्स सपोज हमको 100 पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पर देखना है. ओके, मॉडल. ठीक है, सो यहाँ पर आपकी पॉसिबल 100 वैल्यूज आपके सामने विजिबल है.
So yes guys, this is the last implementation of your neural network which we have done right now, जो आपका RNN के basis पर हुआ है, ठीक है. Implement it fast and I will let you know with the final input and output. जल्दी, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी इसको खत्म करो. जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर 3 न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया है. इसके पहले हमने RNN और ANN को अलग से भी इम्प्लीमेंट किया था. हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें परफॉर्म की थी. तो गाइस, यही कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बेसिस पर आपका जो जनरेटिव AI है वो बनता है. आप ये नहीं बोल सकते कि आपका जनरेटिव AI कोई एक चीज पर बनेगा, बिकॉज इट हैव लाइंस, इट हैज माइल्स टू स्टडी. इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप अगर एक सिंगल चीज को स्टडी कर लोगे तो जनरेटिव AI आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा. आपको सबसे पहले बहुत बेसिक, जो अभी जस्ट मैंने आपको स्क्रैच से बताया, विच इज योर डीप लर्निंग, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. आपको न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. आपको उसके ऊपर बेसिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है. आपको न्यूरल नेटवर्क्स के इनसाइट्स क्या मिल रहे हैं, वो इनसाइट्स में आपको कितना पॉजिटिव वैल्यू था, कितना नेगेटिव वैल्यू था, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स कैसे यूज होंगे, वही डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको NLP से कैसे टच आउट करेगा. एंड देन आपके डिफरेंट फ्लक्चुएशंस जहां पर जाकर फिर आपका जनरेटिव AI का मॉडल बनना स्टार्ट होगा. समझ में आया? तो ये तो बहुत एक स्क्रैच पार्ट था, या एक स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट था, जहां पर आपको पता चले कि आपको डीप लर्निंग से जनरेटिव AI को कनेक्ट कैसे करना है एंड आपको जनरेटिव AI के मॉडल को वहां पर यूज कैसे करना है. ठीक है. इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो वी हैव मेनी थिंग्स टू इम्प्लीमेंट. ठीक है. वी हैव समथिंग नोन एज मशीन लर्निंग. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मशीन लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसका है ना एक फ्लो होता है, इसका एक बहुत ही प्रॉपर फ्लो होता है. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले ये फ्लो जाता है. सबसे पहले आप यूज करते हो आपके एक्सेल को. ठीक है. एक्सेल में या फिर आपके SQL में आपका डेटा जो होता है वो लोड होता है. ठीक है. Screen is not. Okay, I'll share my screen. Just a minute. Okay, so सबसे पहले आपका SQL या Excel में आपका डेटा लोड होगा. उसके बाद जाकर आपका डेटा विजुअलाइज होगा. वो विजुअलाइज होगा आपके Power BI या आपके Tableau के बेसिस पर. उसके बाद आपका जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, या जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, या जो आपका एडवांस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आपका परफॉर्म होगा पाइथन के बेसिस पर. ठीक है. विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यही पाइथन के बेसिस पर आपको डिफरेंट फ्लक्चुएशंस परफॉर्म करने होते हैं. जैसे कि आपके डेटा का क्लीनिंग हो गया, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो गया, आपके डेटा को लोड करना हो गया, है ना. डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ठीक है. सो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद डेटा हैंडलिंग वाला जो पार्ट है आपका, इसके अलावा आपके डेटा को मैनिपुलेट करने वाला जो पार्ट है आपका. तो ये पूरा जो परफॉर्म होता है ये आपकी लाइब्रेरीज के बेसिस पर होता है, विच इज योर NumPy. ठीक है. योर पैंडास, योर मैटप्लॉटलिब, जिसका जस्ट अभी हमने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन देखा, एंड योर Seaborn. ठीक है. तो ये आपकी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. येस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मशीन लर्निंग ऑल्सो. इसके बाद आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट सीखना होता है. ठीक है. जिसमें आप आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर चीजों को लोड करते हो. ये आपका कोर पार्ट है आपके ML को स्टडी करने का. जब आप ये कंप्लीट कर देते हो, देन यू विल स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग, जिसके अंदर अगेन 3 पार्ट है. फर्स्ट इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड देन विल योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है. जिसके बेसिस पर आपके AI एजेंट्स या AI मॉडल्स बनते हैं. अब मशीन लर्निंग कंप्लीट होने के बाद विल कंटिन्यू विद द पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, जो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया. यहाँ पर ये जो आपका डीप लर्निंग है, यहाँ से आपका जनरेटिव AI का आपका बेसिक स्टार्ट होता है. समझ में आया? तो ये जनरेटिव AI पता होने के पहले आपको ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मर्स के बाद आपको न्यूरल नेटवर्क्स भी पता होना चाहिए, जो अभी जस्ट हमने स्टडी किया, विच इज योर ANN, योर CNN एंड योर RNN. तो ये सारी चीजें हैं.
इसके इसके अलावा आपको एनएलपी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एनएलपी के बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे कि टोकनाइजेशन होता है, आपका स्टेमिंग होता है, उसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें होती है ना। स्टेमिंग होता है, उसके बाद स्टॉप वर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एनएलपी के बाद आपका छोटा सा पार्ट कंप्यूटर विजन हो गया, आपका बेसिक एआई हो गया, या आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। ये सारे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका एक एलएलएम मॉडल या आपका एक विजुअलाइजेशन बनता है, जिसको आप डिप्लॉय करते हो। किसके बेसिस पर डिप्लॉय करते हो? तो जिसको आजकल बहुत ज्यादा जो हाइप पर चल रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट है आपका वो हो रहा है आपके क्लाउड या तो आपके AWS के बेसिस पर। समझ में आया? तो ये सारा डिप्लॉयमेंट, ये सारे एलिमेंट्स को क्रिएट करना या ये बेसिक से इसको स्क्रैच पर लेके जाने वाला जो पार्ट है, ये आपने आज यहाँ पर स्टडी किया। डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर गाइस? यस गाइस, किसी को कोई डाउट है? यस, नो वन? देवेंद्र, हसन, शिवम, वंदन, प्रताप, खुशबू, उबैदुल्ला, शुभम, माधुरी, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। सबको समझ में आया कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आप न्यूरल नेटवर्क्स को क्रिएट करोगे? यस मैम। ओके, तो यहाँ से आपका स्क्रैच पार्ट स्टार्ट होता है, या आपका जनरेटिव एआई स्टार्ट होता है, या आप ऐसे जनरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आपके कुछ बेसिक अफर्मेशंस हैं। सो यस, आई एम एंडिंग माय सेशन हियर, ओके। देन सर विल कोऑर्डिनेट यू आफ्टर दिस थिंग, and if you have any query related to this, he will guide you. Okay guys? Yes, Khushbu, do you have any doubt? Yes ma'am, can we get access to this PDF or the file you were sharing? Yes, I'll just share this with my management team, and then I'll let you know that you will get this PDF from me. Okay. Okay.